5 سیکنڈ کی طرح گزر جائے گا جب تیری ابتدا اذان سے ہے کہ کان میں اذان دی گئی، تکبیر کہی گئی، تیری ابتدا اذان سے ہے اور تیری انتہا بھی جنازے کی نماز سے ہے اور عزت و تکریم سے ہے، تو جنتی ہو کے جہنمی کو ماڈل کیوں بنا رہا ہے؟ تو جنتی ہو کر جہنمی کے نقشے قدم پہ کیوں چل رہا ہے؟ تو کسی فلم کے ایکٹر کی بات کرتا ہے، تو کسی لیڈر کی بات کرتا ہے، تو کسی نیتا کی بات کرتا ہے، تو کسی تم زمیندار لینڈ لارڈ کی بات کرتا ہے، تو بات کر مصطفیٰ کی، تو بات کر مصطفیٰ کے بیٹے حسنین کی، تو بات کر غوث اعظم کی، تو بات کر خواجہ غریب نواز کی، تو بات کر حضور مخدوم شاہ مینا کی، تو بات کر مخدوم مینا کی، تو بات کر دیوا شریف کے شاہ حاجی واری سائی کی۔ ان بزرگوں کا چرچا کر پھر دیکھنا، جب چرچا اس کا کرے گا تیرا آغاز بھی اچھا، انجام بھی اچھا، مرنے کے بعد تو امیتابھ کے ساتھ جہنم نہیں جائے گا، مرنے کے بعد حسنین کریمین کے غلاموں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ جب میں دیکھتا ہوں مسلم نوجوانوں کو کافروں کی طرح صرف بزنس کی بات کرنا، کافروں کی طرح صرف مکان کی بات کرنا، کافروں کی طرح صرف گاڑی خریدنے کی بات کرنا، یہ کام تو کافر کرتا ہے جس کو جنت پر یقین نہیں ہے، جس کو میزان سے نہیں گزرنا ہے، جس کو وہاں جس کی نیکی بدی تولے جانے پر یقین نہیں ہے، جس کو قبر میں فرشتہ کے آنے پر یقین نہیں ہے، جس کو پل صراط پہ وہ 500 سال کے برابر جو راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز، اس پر چلنے کا وشواس نہیں ہے، وہ کافر چاہے ہر وقت شراب پیے، وہ چاہے زنا میں لطفت رہے، چاہے وہ 24 گھنٹے مال کرتا ہوا مر جائے، چاہے وہ 50 کمرے کا مکان بنا لے، چاہے 50 مال بنا لے، اسے ہوتا کیا ہے؟ انجام آخر موت ہے اور انجام آخر آگ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، خانقاہ کی باتیں سن لے، ان بزرگوں نے ہر آنے والے کو صرف آخرت کی بات بتائی ہے، ان بزرگوں نے ہر آنے والے کے دل سے سینے دنیا کی محبت کو چھوڑایا ہے۔ خانقاہ وہی ہے جہاں جو کی روٹی کھلائی جاتی ہے، خانقاہ وہی ہے جہاں تہجد و اشراق و چاش کو ابابیل پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ وہی ہے جہاں مہینے کے 2-4-5 روزے رکھوا کر سینے کا سنگ مٹایا جاتا ہے، خانقاہ وہی ہے جہاں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو بادشاہت کے تخت کو ٹھوکر مار کر وہ آ گئے حضور رحمت النبی کی بارگاہ میں بنگال میں، ان کی خانقاہ میں آ گئے، علم حاصل کرنا ہے اور سینے کا زنگ مٹانے کے لیے خدمت خلق کرنی ہے۔ حضور مظفر بلخی وہ بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، مخدوم بہاری کے پاس آ گئے بہار شریف، وہاں انہوں نے خانقاہ میں جھاڑو لگانا، آنے والے مہمان کا کھانا بنانا، اپنے مرشد کے چہرے کا دیدار کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے علم حاصل کرنا، ان کی باتوں کو دوسرے تک پہنچانا۔ بادشاہ چھوڑ کے زمین پہ آ گئے، مٹی پہ سونے لگے، دوسروں کی خدمت کی خاطر لنگر کھانے میں کھانا بنانے لگے۔ اب پھر کیا ہوا؟ اگر مظفر بلخی بلخ کا بادشاہ ہوتا، اس کا چرچا آج اس گاؤں میں نہیں ہوتا، اس کا چرچا 10 گاہوں میں نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ کو ٹھوکر مار دی، مرشد کی خدمت میں آ گئے، مرشد نے اسے تپا کر وہ کندن بنایا کہ آج 500 سال ان کے وصال کے ہو گئے اور کروڑوں زبان پہ ان کا چرچا جاری ہے۔ جو دولت کی محبت میں جیے گا ان کے بال بچے اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن جو رب کی محبت میں مرشد کی خدمت میں گزار دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مخدوم بنا دیتا ہے، لوگوں کے لیے ماڈل بنا دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز سے پوچھا گیا، حضور آپ ہندوستان کے مخدوم کیسے بن گئے؟ راجا تو دلی کا ٹیمپرری ہے، اصل میں راجا تو ہندوستان کا خواجہ غریب نواز ہے، تو اس قبر کے اندر میں رہ کے سارا ہندوستان چلاتے ہیں۔ ان سے ان کی زندگی میں پوچھا گیا تھا، سرکار آپ مخدوم کیسے بن گئے؟ آپ حاکم کیسے بن گئے؟ آپ سبوں کے مخدوم اور متا کیسے بن گئے؟ کہا میں نے اپنے مرشد عثمان ہارون کا بستر 30 سال تک کھویا ہے، اسی خدمت نے مجھے مخدوم بنا دیا ہے، اسی خدمت نے مجھے مخدوم بنا دیا ہے۔ خانقاہ گھمنڈ کی جگہ نہیں ہے، گھمنڈ کو توڑنے کی جگہ ہے خانقاہ۔ خانقاہ میں کوئی سینہ اٹھا کے نہیں چلتا، خانقاہ میں نارمل بنایا جاتا ہے، خانقاہ میں گالی کا جواب گالی سے دینے کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، خانقاہوں میں گالی سہ کر کے مسکراتے ہوئے دعا دینے کی تعلیم خانقاہوں سے دی جاتی ہے۔ یہی تعلیم خانقاہ کی ہے، وہاں کا کوئی آئے اور گالی دے تو وہاں گالی کا جواب گالی سے نہیں ملتا ہے۔ آج اگر کسی خانقاہ میں گھمنڈ ہے، خانقاہ میں غرور ہے، وہاں گالی کا جواب گالی سے ہے، وہاں اگر علم دین کی توہین ہے، وہ اگر کسی مولانا کے خلاف بولا جا رہا ہے، یہ سمجھ لے کہ وہ خانقاہ نہیں خامقہ ہے، وہ جہالت کا اڈا ہے۔ خانقاہ کے نام پہ 2 روٹی 2 پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، وہ خانقاہ ہے وہ جہاں پہ آنے والا گالی بھی دیتا
होता है। तो जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक पंडित रामदेव महंत शहर में बुझी हुई तलवार लेके आया था कि कत्ल कर देंगे, न या रहेंगे न कलमा पढ़ने वाली की तादाद बढ़ेगी। ये जब से आए हैं धीरे धीरे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तमाम पंडितों का सरदार राजा रामदेव महंत वो शहर में बुझी हुई तलवार लेके आया कि एक बार में काम तमाम कर दे, ताकि इनका बढ़ता हुआ दीन ब्रेक लग जाए। लेकिन जैसे ही वो शहर में बुझी तलवार को छुपा के आया, गरीब नवाज के एक मुस्कुराहट ने उसकी दुश्मनी की जड़ें काट दी। एक मुस्कुराहट ने, गरीब नवाज की मनमोहक बोली ने, गरीब नवाज के अखलाक ने उसका दिल जीत लिया। शहर में बुझी हुई तलवार नीचे गिर पड़ी, कदमों पे सर रख दिया। कहा रामदेव महंत किस इरादे से आए हो? कहा इरादा तो दूसरा था, मगर आपने अब मुझको अपना गुलाम बना लिया है। अब कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में दाखिल कर लीजिए। ये कौन सा अमल था गरीब नवाज का कि रामदेव महंत जैसे पंडितों के सरदार को कलमा पढ़ने पर मजबूर किया? न आपने तकरीर करी, न आपने तलवार चलाया, न आपने उनको पैसे दिया। एक मुस्कुराहट थी जिससे दिल जीत लिया। इसलिए इस्लाम न तलवार से फैला है, न इस्लाम बकवास से फैला है, न इस्लाम बादशाहत से फैला है। इस्लाम मजहब अखलाक है, सिर्फ और सिर्फ अखलाक की तलवार से फैला है। आज मुसलमान चूंकि बेहंगम हो गए, मुसलमान बेढंगे हो गए, मुसलमान का सुलूक अपनी बीवी से अच्छा नहीं है, अपने बेटों से अच्छा नहीं है, अपने पड़ोसी से अच्छा नहीं है, अपने रिश्तेदारों से अच्छा नहीं है, अपने अहबाब से अच्छा नहीं है, अपने मुर्शिद से अच्छा नहीं है, अपने इमाम से अच्छा नहीं है, अपने मौलाना से अच्छा नहीं है। जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो गई हो वह काबिल एहतराम होता है, उनसे अच्छा सुलूक नहीं है। यानी बदसलूकी ने मुझको जलील कर दिया, बदसलूकी ने काफिरों की निगाहों में मुझको गिरा दिया। आज ये आवाज देती है ये कॉन्फ्रेंस, ताजुल औलिया कॉन्फ्रेंस। जिस बुजुर्गों से मोहब्बत करते हो तो धागा बांधने का नाम मोहब्बत नहीं है, धागा बांधने का नाम मोहब्बत नहीं है। मज़ार का तवाफ करना हराम है, मज़ार को सजदा करना हराम है, अपने मुर्शिद का पांव चूमना जायज है, वह सजदा करना हराम है, हाथ चूमना जायज है और सजदा करना हराम है। तो इसकी आवाज आ रही है बुजुर्गों की कब्रों से कि सजदा मत करो, धागा काफिरों की तरह जाहिलों की तरह मत बांधो। आला हजरत ने कहा है 4 हाथ दूरी पे रह, अदब से खड़ा रह, कुरान पढ़, उसके बाद उसकी रूह पे सवा पहुंचा, उनके वसीले से अपने लिए दुआ कर, फिर वहां से लौट जा। चादर की पार मत लगा, वहां पे धागा मत बांध। वो तो काफिर है तो दरख्तों में 1 लाख धागा बांधता है, वो हर मुराद का अलग धागा बांधता है। इन बुजुर्गों की कब्रों से वहां से सबक मिलता है, मिशन मिलता है, वहां से अखलाक मिलता है, उनके जीने का ढंग मिलता है, वहां से तर्ज जिंदगी मिलता है, स्टाइल ऑफ लिविंग मिलता है, जीने का रहस्य मिलता है। बुजुर्गों की कब्र पे आज भी चले जाओ, उनकी जिंदगी को निगाहों के सामने लो। अगर तू गुनाह कबीरा में लटपट रहेगा, अगर फिर से तुमने हाजिरी दी, हाजिरी का फैज़ मिलेगा, गुनाहों से नफरत पैदा होगी, नेकियों का शौक पैदा हो जाएगा। अल्लाह के वलियों के आस्थाने से सबक मिलता है, वहां से मैसेज मिलता है, वहां से पैगाम मिलता है। और हमने जाहिलों की तरह उसे दुनियावी मुराद हासिल करने का जरिया उसको बना दिया। अल्लाह के वली जब तक जमीन पे रहते हैं मुरीदों की तरबियत करते हैं, और जब कब्र के अंदर चले जाते हैं वहां से भी तरबियत का एक दरिया बहता है, तरबियत का एक फैज़ जारी रहता है। और हमने वो अपने आप को उस फैज़ से महरूम कर लिया। बुजुर्गों के अखलाक कैसे थे? वह गालियां सुन के भी जवाब गाली से नहीं देते थे, वह दूसरों के उयूब की पर्दापोशी करते थे, वह कम खाते थे, वह कम बोलते थे, वह कम सोते थे, वह समाज में कहते थे अखलाक से काम ले, माँ बाप के लिए बेहतर औलाद बन जा, औलाद के लिए बेहतर माँ बाप बन जा, पड़ोसी के लिए शानदार पड़ोसी बन जा, अहबाब रिश्तेदार के लिए शानदार उनकी खिदमत करने वाला अच्छा पड़ोसी बन जा। दूसरों से लालच खत्म कर दे, दूसरों को देने वाला जज्बा पैदा कर ले। देने वाला हाथ ऊपर रहता है, लेने वाला हाथ नीचे रहता है। देने वाले से सखावत टपकती है और लेने वाले से मोहताजी टपकती है, तो तुम सखावत का हाथ बुलंद कर ले। सरकार गरीब नवाज ने वही पैगाम दिया, मखदूम अशरफ जानी सिमनानी ने वही पैगाम दिया, खुदुद्दीन बख्तियार काकी ने वही पैगाम दिया, हुजूर महबूब इलाही ने वही पैगाम दिया। और यही पैगाम लखनऊ की जमीन से भूखा रहने वाला, टूटी चप्पल पहनने वाला, लकड़ी और टाट पहनने वाला, चमड़ा पहनने वाला, पवन वाला कपड़ा पहनने वाला,
मगर दरख्त के हर पत्ते पे अपनी करामत के तौर पर अपना चेहरा दिखला के मजहब इस्लाम की हक़ानियत साबित करने वाला यही पैगाम लखनऊ की खानका से हुजूर मखदूम शाह मीना ने अता फरमाया है। इसमें करीब नवाज का फैज़ यहाँ से मिलेगा, आज़म का फैज़ यहाँ से मिलेगा। उन बुजुर्गों की रिवायत को जिसने जिंदगी दे दी है, उन बुजुर्गों के पास आ जा, उनकी खिदमत कर, हकीकी इस्लाम का तस्वुर इसी खानकाहों से मिलता रहे। खानका ही महान आज चुके चौपट हो चुका है, इसलिए सबके सीने में घमंड पैदा हो गया। आज जरूरत है कि दोबारा उसी खानकाही निज़ाम को जिंदा किया जाए जहाँ जबकि रोटी खाने का इंतजाम हो। मौलाना, मौलवी, हाफिज, कारी, मुफ्ती, वो सारे मुफ्ती बनने के बाद खानकाहों में आ जाए। यहाँ 2-4 दिन में 2-4 महीने गुजारे, जब मुजफ्फर बल्कि बादशाहत का तख्त छोड़कर वो खानका में आ सकते हैं, तो मुफ्ताने कराम को भी आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनने के बाद इन बुजुर्गों की खानकाहों में आना चाहिए। वहाँ जबकि रोटी खाना चाहिए, रात भर 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ना चाहिए, ताकि उनका सीना घमंड से पाक हो जाए और आजिज़ी खाकसारी का नमूना हो जाए। फिर किसी मस्जिद में चला जाए तबलीग दीन करने के लिए, तो गाली सुन के भागेगा नहीं, बल्कि सब्र करके रह के उन गाली देने वालों को मुत्तकी बना के वहां से लौटेगा। यही पैगाम हमारे बुजुर्गों ने अपनी खानकाहों से दिया है। बात बड़ी लंबी हो जाएगी। उस खानकाहों में इस हदीस पाक को कसरत से मुरीदों को पढ़ाया जाता था। उस हदीस पाक का एक टुकड़ा मुलाजा कीजिए। हर आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए कि मुझको जवाब देना होगा। आंख का जवाब, जबान का जवाब, हाथ का जवाब, पांव का जवाब, पेट का जवाब, जमींदारी का जवाब, मकान का जवाब, सब का जवाब देना होगा। उसी को मुख्तसर में सरकार ने फरमाया कि 4 चीजों का जवाब जब तक बंदा देगा नहीं, 50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेज़े पे आफताब होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग गर्दन, नाक और सर तक पसीने में डूबे हुए रहेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ अपनी औलाद से भागेगी, एकलौता बेटा जिसके लिए जान देती थी, वहाँ बेटे को पसीने में शराबोर और जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखेगी, मगर कुछ नहीं कर सकती है वो, इसलिए कि यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। वो अल्लाह कहता डरो उस दिन से जिस दिन भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। सारे लोग अपने आमाल के ताल्लुक से फिक्रमंद रहेंगे, यहाँ तक कि सारे लोग मादर साथ पढ़ना रहेंगे, मगर किसी का किसी की तरफ कोई ख्याल नहीं रहेगा। सारे लोग पसीने में शराबोर अपने आमाल का जवाब दे होगा। वहां तो मर्द को एहसास भी ना होगा कि मैं मर्द हूँ, औरतों को एहसास भी ना होगा कि मैं औरत हूँ। सब अपने अपने गुनाहों के लिए फिक्रमंद होगा, बख्शिश मेरी होगी कि नहीं होगी। न मीज़ान पे जब नाम आमाल तौले जाएंगे, मिलने की है 1 लाख, बुराइयां हैं 1 करोड़, कैसे कंपनसेशन होगा। सारे लोग फिक्रमंद रहेंगे, कोई किसी का काम नहीं आएगा। वहां सवाल होगा, पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट हिज लाइफ, ये जो कीमती जिंदगी अल्लाह ने दी है। मैंने कल एक बंदे को देखा जो मेरे साथ जाने में सफर किया, मेरे साथ आने में सफर किया, उसकी उम्र होगी कम से कम 45 इयर्स, उस पर नमाज फर्ज हुई कब 15 साल की उम्र में, क्योंकि हदीस में आया है कि जब तेरे बच्चे 7 साल के हों उसे नमाज का आदेश दे, और जब बच्चा 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे, और ये माँ बाप पे लाजिम है तो उसको मार के नमाजी बना दे। जमीन खरीद के बच्चे को देना ये फर्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई बाप अपने बच्चे को जमीन नहीं खरीद के दिया, क़यामत के दिन सवाल ना होगा कि तुमने बच्चे को जमीन क्यों नहीं दिया, तुमने बच्चे को मकान क्यों नहीं दिया। मुझ जैसा पागल जो सवाल होगा उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है, और जिसका सवाल ही नहीं होगा उस मकान के लिए बंदा का चेहरा काला हो गया। काम करते करते, बिजनेस करते करते, भाग दौड़ करते करते वतन से बेवतन होकर बाल बच्चों की तरबियत छोड़कर मारे मारे फिरकर अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, सऊदी अरब में ऊंट चरा चरा के, ताकि बच्चे को छोटा सा घर दे दें, बाकी बच्चे को 1 कट्ठा जमीन दे दें, छोटी सी एक दुकान करके दे दें, बच्चे को थोड़ा पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना दे। अल्लाह की कसम ये सवाल ही नहीं होगा क़यामत के दिन, तुमने अपने बच्चों को मकान बना के क्यों नहीं दिया, तुमने अपने बच्चों को 1 बीघा जमीन खरीद के क्यों नहीं दिया, तुमने अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर क्यों नहीं बनाया। ये सवाल होगा कि तुमने बच्चे को नमाज का हुक्म क्यों नहीं दिया। तो नमाज पढ़वाने में टाका नहीं लगता है,
पैसा नहीं लगता है, रुपए पैसे नहीं लगते हैं, जहां सिर्फ जबान का इस्तेमाल करे, अपने हाथ का इस्तेमाल करे। और बाप होने के नाते जब बच्चों को पालते हैं तो बच्चों को नमाजी बनाना भी मेरा हक हासिल है, इसलिए नमाजी बनाए। जमीन जगह तेरा जरूरी नहीं है, उसका सवाल भी नहीं होगा। तो जमीन जगह खरीदने में तो आदमी 10-20 साल लगा देता है, नमाज पढ़ाने में 10 मिनट लगेगा, बच्चों को समझाने में तो 4-10 दिन समझाएगा, अपने साथ लेके जाएगा। 7 साल की उम्र में नमाजी बनने को बच्चा बच्ची दोनों को बोलेगा, कभी नमाज छोड़ेगा कभी नमाज पकड़ेगा। 10 साल उम्र हो जाएगी, नमाज फर्ज नहीं है, मगर उसके बावजूद 10 साल के बाद जब वह सोच समझ वाला हो गया, उस नमाज पढ़ने का आदी हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो अब मार के बाप अपना डर दिखा के नमाजी बना दे। अभी भी 10 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, क्योंकि लड़का हो या लड़की, जब माहवारी खून जारी होता जवान होगी, लड़का जब वो नाइट फोर के तलाम हो जाता जवान होगा, लेकिन मैक्सिमम एज है 15 साल। 15 साल में लड़का उसको एहतराम हो या ना हो जवान है, लड़की चाहे माहवारी खून आए ना आए वो जवान है। 15 साल मैक्सिमम उम्र है, बाकी 9 साल के बाद लड़की को माहवारी खून आया वो जवान मानी जाएगी। 10 साल के बाद लड़के को एहतराम हुआ वो जवान माना जाएगा, लेकिन 15 साल तक अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर वो जवान माना जाएगा। 15 साल अब आखिरी उम्र मान लेते हैं, नमाज फर्ज होगी। नमाज बाप पर लाजिम है कि बच्चे को मार के नमाजी बनाए। जब नमाजी बन जाए तो बिस्तर अलग कर दे, जैसे जवान हो थोड़ी उम्र जाए उसकी फौरी शादी करवा दे, शादी करवा दे, बिस्तर अलग कर दे, नमाजी बना दे। मालूम है आज कोई दुनिया में जिनाकारी है, जो गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल में जो इस्लाम बाजियां है, जो खतरनाक बीमारियां है, जहाँ मुश्तजनी की बीमारी है, इस्लाम बाजी की बीमारी है, खवातीन की हम जिस होमोसेक्सुअलिटी की बीमारी है, वो सारी बीमारियों को दूर करने का इलाज किसी मेडिकल एक्सपर्ट के पास नहीं है। वो इस हदीस पाक को गौर से देखिए, हुजूर ने 1400 साल पहले क्या कहा कि जब बच्चे 10 साल के हो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी हो हम फिल्म बना दे, उनकी ख्वाबगाहों को बिस्तर को अलग कर दे। इस हदीस पाक पर अगर अमल किया जाए तो होमोसेक्सुअलिटी और एंटी नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स का जितना भी हंगामा दुनिया में है, सिर्फ इस हदीस पर अमल करने की बरकत से सारे खुराफात का खात्मा हो जाएगा, सेहत मिल जाएगी। इसलिए आज कहा जाता है कोई डॉक्टर बड़ा नहीं, कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई ओरेटर बड़ा नहीं, कोई साइंटिस्ट बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सबसे बड़े तबीब मुस्तफा की जात, सबसे बड़े हकीम मुस्तफा की जात, सबसे बड़े मुस्लिह मुस्तफा की जात, यानी महान पुरुष का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। मुसलमान तो मुसलमान, ये दिल्ली का जोकर, ये टेलीविजन पे आने वाला एंकर जो जाहिल है, जो एक तरह की बातें करता रहता आंखें बंद करके, उसे क्या खबर इस्लाम क्या, इस्लाम के पैगंबर क्या है। ये तो सिर्फ तलवा चाक एक आदमी का, उसका तलवा चाकते चाकते अंधा हो जा, पढ़ने लिखने के बाद भी जाहिल हो जा, वो चाहे हिंदुस्तान में आग लगा दे, फिर भी ये बोलना इससे बड़ा हिंदुस्तान का अच्छा आदमी कोई नहीं है। अंधे हो गए तो हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, संविधान कहाँ जा रहा है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल कितना अंधकारमय होने जा रहा है। यही इससे बड़ा सबूत क्या होगा। एक बंदा बोल रहा है हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, बस हमें एक ही चीज चाहिए कि मुल्ला जी को सजा दे दें, यही हमारे सीने को ठंडक पहुंचाने के लिए काफी है। इससे बड़ा अंधविश्वास, इससे बड़ी अंधभक्ति, इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी रसालत, इससे बड़ी खबासत और क्या हो सकती है। उसको सड़क नहीं चाहिए, उसको बिजली नहीं चाहिए, उसको एजुकेशन नहीं चाहिए, उसको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उसको स्कूल नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इतना ही चाहिए कि मौलवी साहब को सजा मिल जाए, इनकी माइक का अजान बंद हो जाए, बस हमारा कलेजा ठंडा हो जाएगा। हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसी जुमले से साबित हो रहा है। ये हिंदुस्तान के लोग 1000 साल पहले की तरफ बढ़ रहे हैं, 500 साल पहले की इलिटरेसी और इग्नोरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अंधभक्ति नहीं चलेगी। जहां भी अक्ल है, जहां भी शऊर है, वह लोग वही कहते हैं। एक अक्ल शऊर वाला मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने हमारे पैगंबर के बारे में किस तरह तिल निकाल के रख दिया। वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, only a glimpse of it I can get. What a dramatic succession
क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पिक्चरस प्रोसेस प्रॉपर अमल कहता है दिस इज मोहम्मद द प्रॉफिट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द जज, मोहम्मद द बिजनेसमैन, मोहम्मद द ओरेटर, मोहम्मद द रिफ्यूज ऑफ ऑफिस, मोहम्मद द प्रोटेक्टर ऑफ सिलेक्ट, इवन स्पीकर ऑफ फीमेल। आगे कहता ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो वक्त हमन राम कृष्ण राव वो कहता है इस्लाम के पैगंबर की अजमत की तह में उतरना बड़ा मुश्किल है। उनका एक चैप्टर पढ़ते हैं, उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है, हम उसके पढ़ने में लग जाते हैं, उनकी क्वालिटीज का तीसरा चैप्टर आ जाता है। एक खत्म न होने वाला सिलसिला है उनकी क्वालिटीज का, उनके औसाफे जमील का, कि एक के बाद एक उनके कमालात का चैप्टर सामने आता है। वो कहते हैं ये मुस्तफा है, खतीब है मुस्तफा, मुअल्लिम है मुस्तफा, जज है मुस्तफा, जज है मुस्तफा, मुस्लिम है मुस्तफा, बिजनेसमैन है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से नजात दिलाने वाले है मुस्तफा। आखिर में वह हिंदू पर हमन बोला ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोड इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इस अलाई के हीरो मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो मुस्तफा का योगदान रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया। किसने कहा? पीर साहब ने नहीं कहा। पीर साहब को हमेशा सरकार की तारीफ में उनकी जबान तर रहती है। आका अलैहिस्सलाम के औसाफ जमील बयान करने के लिए उलमा किराम की जबानें खुली रहती है। मगर ये जो प्रोडक्शन मैंने पेश किया ये हिंदुस्तान का एक बरहमन है, बहुत पढ़ा लिखा बरहमन है, जिन्होंने एक किताब लिखी मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। उस किताब का एक पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया है। वह दिल्ली का जोकर, वह दिल्ली के जोकराइन, वह दिल्ली के एक टाइम जिसने मुस्तफा के ताल्लुक से खतरनाक तबसरा किया था, जिसको सारा हिंदुस्तान ने इस तरह धमकाया कि आज वो जिंदा है या मर गई या किस भीड़ में घुस गई वो किसी को मालूम नहीं है। यही तो है जो मुस्तफा की अजमत बयान करता है, वह सर पे उठा लिया जाता है, और जो नबी की शान घटाता है वह जिंदा रहने के बावजूद मुर्दा में तब्दील हो जाता है। वो आज वो आजादी के साथ जी नहीं सकती, जिसे सारा हिंदुस्तान नुपुर शर्मा कहता था आजादी से जी नहीं सकती है, आजादी से चाय की दुकान पे बैठ नहीं सकती है। मुस्तफा की तौहीन ने उसके सीने को खौफ से भर दिया है, मुस्तफा की तौहीन ने उसका जीना हराम कर दिया है, मुस्तफा की तौहीन ने उसकी जिंदगी की सारी रौनकों को छीन लिया है। इसलिए मैं कभी कभी कहा था कि जो भी मुस्तफा की तौहीन करे उसकी गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस थोड़ा इतना ही करना है, सब्र के साथ रहना है। जब वह लगे कि कलमा पढ़ने वालों ने मेरी नोटिस नहीं लिया, बस उसको तन्हाई में कभी मौका मिले उसकी जबरदस्त खबर ले लेनी है। जहां दो चार आदमी की खबर ले ली गई फिर कोई पांचवा नबी को गाली देने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसमें जुलूस निकालने से ज्यादा इस तरह तन्हाई में उसकी खबर ले लिया जाए, ताकि जहां दो चार आदमी की खबर ले ली गई फिर कोई चौथा तौहीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए उसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, उसका वरना वो लीडर बन जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, उसको जेड क्लास की सिक्योरिटी हासिल हो जाएगी। इस कदर मुसलमान उसकी तरफ से बेतवज्जो हो जाए, वह समझ ले कि मेरी बात की नोटिस नहीं ली गई, और कहीं तन्हाई में कोई आशिक रसूल उसकी खबर ले ले, जहां दो चार आदमी की खबर ले ली गई फिर कोई चौथा तौहीन करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सरकार कोठा की अजमत वो एक बरहमन भी तो है, जिसमें का यूरोप का एक क्रिश्चियन, बहुत सारे क्रिश्चियन है यहूदी, इसराइल का यहूदी, औरतों को मारकर, बच्चों को मारकर, बीमारों को मारकर वो क्या हासिल करना चाहता है? कुछ नहीं। अल्लाह ने आज दुनिया वालों को दिखला दिया, दुनिया के सारे मुसलमान का हौसला बुलंद होना चाहिए, उसको मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, मुसलमानों को नमाज पढ़ना चाहिए, मगर इसका अंदाज वही बेढंगाना जो पहले था वही है। नहीं देखा तुमने इस जमाने में एक अमेरिका ही है, वो इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वो अमेरिका की कॉलोनी है, वरना मुट्ठी पर यहूदी क्या कर सकता है? वो अमेरिका पुष्ट भला ही कर रहा है, सारा बम बारूद अमेरिका का है।
इसलिए यहूदी इसराइल का वो अमेरिका के बलबूते पे नाच रहा है। अमेरिका आज चाहे यहूदी का नामो निशान मिल जाएगा। जिस तरह जर्मनी के हिटलर ने 50 लाख यहूदियों को जबे दिया था, कोई कुछ कर नहीं पाया। ये कौम है ही ऐसी जलील, जो जलील कौम दुनिया में सबक करने के काबिल ये कौम है। इसलिए कि इनके जिंदा रहने का मतलब हॉस्पिटल को उड़ाना, इनके जिंदा रहने का मकसद स्कूलों को उड़ाना, इनके जिंदा रहने का मकसद बीमारों और बूढ़ों और औरतों को जबह करना। जबकि वो वक्त जानता है इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है। सरकारी कोठा के बारे में यूरोप का दानिश्वर कहता है, इन्होंने तो मांस की गोद से लेकर कबर की गोद तक जीवन के हर क्षेत्र में हमें सलीका सिखाया है, इज्जत और आबरूमंदाना जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। वो तो बताया ही है, मगर ये ऐसे पैगंबर अखलाक है जो मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है, सिविलाइज बना दिया है। हुजूर ने कहा था कि जंग की तमन्ना मत करना, लेकिन अगर जंग दुश्मन थोप दे तो जंग से उल्टे पांव मत भागना, बहादुरी के साथ मुजाहरा करना और जिहाद करना। लेकिन अलबत्ता इतना जरूर है कि गुस्से में दुश्मनों के बच्चे को ज़बह मत करना, उनकी औरतों पे हाथ मत उठाना, उनके बीमारों पे हाथ मत उठाना, उनके जोरों के इबादत गाँव में माँ इबादत है उन पर हाथ मत उठाना। यानी उनके बूढ़ों को, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को, उनके बीमारों पर हाथ न उठाना। लेकिन आज यूरोप का दानिश्वर कहता है कितना बुलंद मुस्तफा का अखलाक है। मैदान जंग तलवार की जगह है, खून बहाने की जगह है, मगर हॉल ऑफ द मोरालिटी ऑफ प्रॉफिट इस्लाम के पैगंबर का अखलाक कितना बुलंद है जो मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है, जो मैदान जंग को भी फिजिलाइज बना दिया है। ये यहूदी, ये कातिल, ये खबीस ये क्या जाने इस्लाम क्या है, मुस्तफा क्या है। वह जानबूझकर अंधा बनता है, जिन मगर अल्लाह ने गुरूर तोड़ दिया। जो बोला था कि 4 दिन के अंदर मैं गाजा को मिटा दूंगा, नामो निशान खत्म कर दूंगा, हमास का एक बंदा जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गाजा को मिसमार कर दूंगा, जहां जहां छुपा है हमास के लोग उसको मैं मार दूंगा। वो अपनी जबान में हमास का आतंकी आदमी कहता है 4 दिन में मैं अंदर घुस के सबका सफाया कर दूंगा। ए दुनिया के लोगों, अब भी तुम्हें और देखना है कि सब्र की क्या ताकत होती है, इस्लाम की क्या ताकत होती है, तो दुआ में कितनी ताकत है। या 200 करोड़ मुसलमान जो दुनिया के दुआ के लिए हाथ उठा रहे थे, उसकी ताकत का अंदाजा कर ले। जो अमेरिका और इसराइल दोनों मिल के बोला था 4 दिन में गाजा को मिटा दूंगा, फिर हमास के आतंक को मैं खत्म कर दूंगा। आज 8 महीने हो गए, यानी 340 दिन हो गए, आज भी उसी ताकत के साथ हमास के मुजाहिद जिंदा है और आज भी इसराइल के आग बरसा रहे हैं। इसका मतलब यह निकला कि यहूदी का दावा झूठा निकला और इस्लाम की ताकत आज भी दुनिया को मान लेना होगा कि जो ताकत तलवार में नहीं है वो ताकत दुआ में मौजूद है। मुसलमान तलवार के सहारे नहीं जीता, मुसलमान को दुआ अल्लाह के भरोसे जीता। आज हमारे सब्र ने दुनिया के सारे काफिरों को बता दिया। मुमकिन है कि लखनऊ का कोई नमाजी, लखनऊ का कोई मुसलमान इस हमले को देखकर नमाजी ना बने, क्योंकि इनके दिमाग में है सोना, इनके दिमाग में है चांदी, इनके दिमाग में है काफिरों की नकल, इनके दिमाग में है इन दुनियादारों की नकल, इसलिए इनका सीना नहीं हिलता है। ये इस्लाम कुरान पढ़ने का शौक पैदा नहीं होता है। आलिमों की तौहीन कर रहा है, जलसा जुलूस को बुराई का जलसा जुलूस को खत्म करना चाहता है। मस्जिदें वीरान है, कोई वहां जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस जंग से तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। दौलत के मुकाबले में अंधा बना दिया, दौलत के मुकाबले में तेरे सीने को हाथ बना दिया, मकान और दौलत की चाहत ने तुझे बदअखलाक बना दिया, तुझे मस्जिदों से महरूम कर दिया। लेकिन देख अखबार की रिपोर्ट क्या बोल रही है, अखबार की रिपोर्ट कह रही है कि इस 8 महीने के अंदर अंदर अमेरिका और यूरोप के बेशुमार कुफार मुशरिकीन ने इस जंग को देखकर यहूदियों का जुल्म और मुसलमानों का सब्र और मुट्ठी भर जवानों की हिम्मत, उनका हौसला, अल्लाह की जात पर एतमाद और भरोसा, इस पॉइंट को देखकर 8 महीने के अंदर कई लाख मुशरिकीन कुफार यहूदी नसरानी कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गए। तुम्हारा सीना नहीं हिला, अमेरिका के क्रिश्चियन का सीना हिल गया, वहां की यूनिवर्सिटीज के आला तालीम याफ्ता बच्चों का सीना हिल गया। उन लोगों ने देखा मुट्ठी भर नौजवान लिखा है अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, जानने के बेशक अल्लाह की मदद करीब है। ये हमास के लोग कई साल से तैयारी करके जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करके, बारूद और गोला बम इकट्ठा करके कई एक लंबी रणनीति के तहत ये आया था कि
क़िबला अव्वल को आँच न आए। ये यहूदी प्लान बनाने वाला था कि क़िबला अव्वल को तोड़ दिया जाए, वहाँ एक बहुत बड़ा टेम्पल बना दिया जाए, और बिल्कुल करीब जा रहा था क्योंकि सारे अरब ममालिक ने उनको सपोर्ट कर ही दिया है। इसलिए से अब बिल्कुल करीब आ गया कि हम बैतुल मक़दिस को तोड़ गए, इस गुंबद को तोड़ गए। वो तोड़ने के करीब पहुंचा था, मगर हमास के चिर गिनती भर नौजवानों ने उसके सारे इरादे को मिट्टी में मिला दिया, उसका सारा प्लान ध्वस्त कर दिया। इन लोगों के सब्र ने बता दिया कि तेरा जुल्म नहीं चलने दिया जाएगा। तो इनके सब्र की कहानी, कुरान की तिलावत की कहानी, उनकी खूबसूरत औरतें यहूदिया थी, इन हमास के कब्जे में है, मगर उनके बदन को टच तक नहीं करता। उनसे रेप तो दूर की बात है, यह खबीज और गर्दन तक रेप में मुब्तला है, जो अपनी चची से ज़िना करता है, जो ममानी से ज़िना करता है, जो एक शादी करके 4 भाई मिलके उसको सेना के सहारे उसकी दुनिया आबाद है, जहां शराब है, जहां ज़िना है, जहां बरहंगी है, जहां लिबास हया पर्दा नाम की कोई चीज नहीं है। ये बेपर्दा, ये शराबी, ये ज़िनाकार, ये 50 चीजों को के सामने सर टेकने वाला, ये इस्लाम के खिलाफ बोलेगा। जो ज़िना में गर्दन तक लिपटा हुआ है, वो हमास के हुफ़ाज़ कराम के खिलाफ बोलता है। इन्होंने ज़िना किया है, इन्होंने रेप किया है, वो झूठा है। 8 महीने में कोई सबूत नहीं मिला इन्होंने वहां की महिला के साथ कोई ज्यादती की हो, ज़िना किया हो। वो तो हुफ़ाज़ कुरान है, वो तो मैदान जंग में कुरान पढ़ते हैं, वो तो फजर की नमाज 5 नमाजें बाजमात पढ़ते हैं, वो तो कुरान की तिलावत करते हैं। ए मुसलमान, तुमने इस जंग से कुछ नहीं सीखा। अमेरिका के प्रोफेसर सीख गए, अमेरिका के स्टूडेंट सीख गए, फ्रांस के स्टूडेंट सीख गए, ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट सीख गए, यानी स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए इन मुजाहिदीन के मुजाहिद हिम्मत को देखकर इस्लाम की सच्चाई को समझ लिया। अब वो भी मुसलमान बनकर कुरान पाक की तिलावत करने वाला बन गया। जब मुशरिकीन वहां के कुरान पाक की तिलावत करने वाले बन गए, मुसलमानों का वो छोकर बच्चा जो चारों तरफ से बाल मूंड कर मुर्गी की चोंच की तरफ बाल रखता है, जो 24 घंटे मुंह में गुटखा रखता है, जो हाथ में काफिरों की तरह धागा बांधता है, जो मुशरिकों की तरह सोने की अंगूठी पहनता है, जो 24 घंटे मोबाइल और व्हाट्सएप पर अधीर रहता है, जिसको अपना मकसद हयात नहीं मालूम है, हिंदुस्तान में कैसे रहने के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, माँ बाप गांव समाज का नाम कैसे ऊंचा करे ये फिक्र उसको नहीं है। उसका मकसद है कि माँ बाप से के पैसा ले ले, मोबाइल रिचार्ज करवा दे और घर से बाहर निकल पुलिया पे बैठ करके रात के 2-4 घंटे मोबाइल चलाए, बस गुटखा खाए, यही उसकी जिंदगी है। मुशरिकों के बच्चे डीएम बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, बैंक प्रोफेशनल ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके बच्चे बन भी रहे हैं। ये साहब दलितों के बच्चे रात भर जाके चराग की रोशनी में पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उसकी बेटियां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही है, उनकी बेटियां यूपीएससी